آج ویو 360 میں بچہ گود لینے کی خواہش کرنے والوں کے لیے پاکستان اور امریکہ میں نظام کس طرح سے کام کرتا ہے. تھینکس گیونگ کے تہوار کی خوشی میں امریکہ میں پناہ لینے والے نئے ریفیوجیز بھی شامل. اور سیر کرائیں گے آپ کو پیرس کے مشہور اور دنیا کے مہنگے ترین علاقوں میں سے ایک شانزلیزے کی. وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں ارم عباسی. پہلے اگر کوئی بے اولاد ہوتا تھا تو خاندان میں ہی بہن بھائی اپنی کوئی اولاد دوسرے کی جھولی میں ڈال دیتا تھا. لیکن گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ اب بے اولاد جوڑے ان سماجی اداروں کا رخ بھی کر رہے ہیں جہاں سے ان کی امید بر آ سکے. لیکن کیا کوئی بھی بچہ گود لینا اتنا ہی آسان ہے جتنا سمجھا جاتا ہے؟ اور جو بچے گود لے لیے جائیں ان کے ساتھ انصاف بھی ہوتا ہے؟ یہ جاننے کے لیے دیکھتے ہیں سدرا ڈار کی یہ رپورٹ. 7 سالہ نادیہ 2.5 برس کی تھی جب اس شیلٹر ہوم میں لائی گئی. اسے گود لینے والوں نے بدسلوکی اور تشدد کا نشانہ بنانے کے بعد اسے زمانے کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا. 2.5 سال کی بچی تھی اور جس وقت اس کو ہمارے محلے والے ہمارے پاس چھوڑ کر گئے تھے تو اس کے سر پر بال نہیں تھے، اس کی اسکن بہت بری طرح تباہ ہوئی بھی تھی. نادیہ کئی برس تک ذہنی دباؤ کا شکار رہی، لیکن سارم بنی ٹرسٹ کے شیلٹر ہوم میں ملنے والی محبت اسے زندگی کی طرف واپس لے آئی. عالیہ سارم کہتی ہیں کہ پاکستان میں بچوں کو گود لینے کے عمل سے متعلق مؤثر قانونی کارروائی نہیں کی جاتی. پیپر ورک نہیں ہوا تھا، پوچھ تاچھ نہیں تھی، چیک اینڈ بیلنس نہیں تھا. دل چاہا تو اڈاپٹ کر لیا تھا، جتنے عرصے دل چاہا رکھا. اور جس قسم کی زیادتی کا نشانہ جو کہ ہم تصور نہیں کر سکتے کہ 2.5 سال کی بچی کو بنایا جائے گا، اس کو بنایا اور بنا کر پھر اس کو لاوارث بنا کر چھوڑ دیا. ایڈاپشن کو اتنا کلیئر اور اتنا مشکل بنا دو کہ ایڈاپشن صرف وہ انسان کرے جو ایڈاپشن کی قیمت جانتا ہے، اور جو نہیں جانتا اس کو ایڈاپشن کے قریب بھی نہیں آنا چاہیے. پاکستان میں ایڈاپشن کا کوئی قانون نہیں. گارجنشپ کے مروجہ قانون کے تحت بچے کی کفالت کی ذمہ داری زیادہ سے زیادہ 18 سال کی عمر تک اٹھائی جا سکتی ہے. سماجی اداروں کا کہنا ہے کہ بچے کو گود لینے کا فیصلہ اس وقت جذباتی ثابت ہوتا ہے جب وہ مستقبل میں اس کی ذمہ داری ادا کرنے سے قاصر ہوں. اس عمل سے بچے کی شخصیت پر نہ صرف منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں بلکہ اس میں احساس محرومی مزید بڑھ جاتا ہے جس کا ازالہ ممکن نہیں. عالیہ سارم کے مطابق ان کا ادارہ بچہ گود لینے کے خواہش مند افراد کو کچھ شرائط کا پابند کرتا ہے تاکہ بچے کا تحفظ یقینی بنایا جا سکے. ہم انہیں قانونی طور پر پابند کر دیتے ہیں. جیسے جس ہم کپل کو دیں گے یہاں سے بچہ سارم بنی ٹرسٹ سے، ان کی شادی کو 10 سال کا عرصہ گزر جانا چاہیے. اولاد نہیں ہے اور 10 سال ہو گئے. اس وقت ہم ایڈاپشن کروا رہے ہوتے ہیں، کورٹ میں 10 لاکھ روپے یا تو کسی بانڈ کی مد میں یا کسی پراپرٹی کی مد میں ہم کورٹ میں اس بچے کے نام کروا دیتے ہیں. جو کورٹ کے پاس ہی وہ رہتا ہے، وہ اماؤنٹ جو بھی چیز ہے وہ دستاویز سب ان کے پاس رہتی ہے. جو 18 سال کی عمر میں یہ بچہ جو 1 سال کا گیا یا کچھ مہینوں کا گیا، 18 سال کی عمر میں یہ وہ چیز ان سے لے لے گا. شیلٹر میں موجود بہت سے بچے پیار کرنے والے ماں باپ کے منتظر ہیں، لیکن اس ادارے کو تلاش ان کی ہے جو صرف اپنے بارے میں نہیں بلکہ ان معصوموں کے لیے بھی دل میں فکر رکھتے ہوں. سدرا ڈار، وائس آف امریکہ، کراچی. بچہ گود لینے کا عمل آسان نہیں، لیکن اس کے بدلے جو خوشی آپ کو ملتی ہے اس کی کوئی قیمت نہیں. یہ الفاظ ہیں ان پاکستانی امریکی والدین کے جنہوں نے پاکستان میں ایدی فاؤنڈیشن سے ایک بچہ گود لیا تھا. ان سے ہماری ملاقات کرا رہی ہیں نیلوفر مغل. آئیے جانتے ہیں ان کی کہانی. فائزہ اور کاشف جاوید نے 13 سال پہلے کراچی سے ایک بچہ گود لیا تھا. He was just 2 days old. حارث کو ہم لوگ بچپن سے آہستہ آہستہ بتاتے جاتے تھے اڈاپشن کی سٹوریز اور پاکستان میں ہم لوگ کیا کرتے تھے. اڈاپشن کے اسی عمل اور تجربے کو خراج پیش کرنے کے لیے فائزہ اور کاشف نے امریکی دارالحکومت واشنگٹن ڈی سی میں ایک نمائش کا اہتمام کیا. اس نمائش میں زیادہ تر تصاویر کراچی کے ان بچوں کی ہیں جو یتیم خانوں میں پل رہے ہیں. یہ پروجیکٹ مجھے 13 سال پہلے سے کیوریس کر رہا تھا کہ میں جاؤں، اور اس وقت یہ سوچ تھی کہ میں جاؤں اور بچوں سے ملوں اور کھیلوں اور ایک جو
एक जो मोहब्बत होती है वो उनके साथ शेयर करूं। We have been talking, so it's not a, अपनी कहानी सुनाते हुए फायजा और काशिफ ने बताया कि उनके लिए गोद लेने का मरहला आसान न था। एडी सेंटर में एप्लीकेशन जमा कराई और यहाँ का प्रोसेस फॉलो किया कि यहाँ सोशल वर्कर होती है जो वो आते हैं घर आपको देखने के लिए कि घर में आपके बेबी की जगह है, घर बेबी के लिए सेफ है, घर में कौन कौन रहता है, बैकग्राउंड चेक होते हैं, सबका मेडिकल चेकअप होता है। कागजी कार्रवाई की वजह से उन्हें बच्चे को अमेरिका लाने में कई माह लग गए। फिर जब वहाँ से कॉल आई कि बेबी है तो फिर मैंने अपनी बहन और बहनोई को फ़ोन किया था क्योंकि उन लोगों को उसी वक्त कस्टडी देनी होती है। और फिर हम लोगों को ज़ाहिर है अमेरिका में दोनों जॉब करते थे तो जॉब पे सब छुट्टी वगैरह लेके हम लोग एक हफ्ते बाद गए। जब आपको बेबी मिल तो जाता है लेकिन उसके बाद फिर वो लोग आपको चेक करते हैं कि आप वाकई में बच्चे का ख्याल कर रहे हैं। तो लिटरली उन्होंने 1.5 महीने में मुझे बर्थ सर्टिफिकेट दे दिया था। फिर वहाँ पे आपको वहाँ की पाकिस्तान की कोर्ट में भी पेपर वर्क सबमिट करना होता है, वहाँ से भी आपको कोर्ट ऑर्डर लेना होता है। फिर जब वो मिल जाता है कोर्ट का ऑर्डर देन आपको यू गो बैक टू अमेरिकन एम्बेसी के हमारा I-66 तो पहले अप्रूव हो चुका था और ये अब बेबी है, एक्चुअली फिजिकल एक बेबी अवेलेबल है जो हमें अडॉप्ट करके पाकिस्तान से अमेरिका ले जा रहे हैं। फिर आपको यहाँ पे कोर्ट में जाके फाइनल एडॉप्शन डिग्री लेनी होती है, वो कंप्लीट कर लेते हैं अडॉप्शन फाइनल अडॉप्शन डिग्री तो आपको फिर बर्थ सर्टिफिकेट मिलता है जिसपे आपका और आपके हस्बैंड का नाम होता है। और फायजा और काशिफ जावेद का कहना है कि अगरचे एडॉप्शन का प्रोसेस तवील, चैलेंजेस और मुश्किलात से भरपूर था लेकिन इसके बदले वालिदैन बनना किसी नेमत से कम नहीं। नीलोफर मुगल, वॉइस ऑफ अमेरिका, वाशिंगटन। किसी बच्चे को गोद लेना एक जिम्मेदारी का काम है। वालिदैन यही चाहते हैं कि बच्चे की तरबियत और परवरिश में कोई कमी ना रह जाए, मगर गोद लिए जाने वाले बच्चे को अमरीकी रियासत में क्या हकूक़ हासिल हैं और ख़ुद आपको किस क्राइटेरिया पर उतरना पड़ता है कि आप बच्चा अडॉप्ट कर सकें, यही जानने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारी साथी सादिया ज़ेब रांझा। सादिया, आप इस अमल से गुजरी हैं, एक बच्चा गोद लिया, तो कैसा पाया आपने सारे अमल को? इरम, ये काफ़ी लेंथी प्रोसेस है लेकिन उस वक्त ये थोड़ा आसान हो जाता है जब कोई फैमिली मेम्बर या दोस्त या जानने वाला आपको बच्चा गोद देने पर रजामंद होता है। तो ऐसे में सिर्फ ये करना होता है कि सोशल सर्विस का इदारा और एक वकील हायर करना पड़ता है। अदरवाइज़ आपको मकामी एडॉप्शन एजेंसीज़ जो हैं उनमें ख़ुद को रजिस्टर करवाना पड़ता है। वो आपको मुख्तलिफ ओरिएंटेशन देती हैं, आपको कोर्सेज़ करवाती हैं ताकि गोद जो बच्चा लिया जा रहा है उसके बाद जो सूरत हाल पेश आनी है उसके लिए आपको तैयार किया जाए और ये कि बच्चे को कब और किस तरह से बताना है। और इस सारे अमल में जो सोशल सर्विसेज के इदारे होते हैं वो शामिल होते हैं। वो आपके घर के बार बार विज़िट करते हैं, आपका बैकग्राउंड और क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक करते हैं, आपकी ज़हनी सेहत का जायज़ा लिया जाता है, घर कितना फ्रेंडली है वो देखा जाता है, आपकी आमदन क्या है, आप कैसे ख्याल रख सकते हैं वो देखते हैं। और फिर इस सारे अमल के बाद वो आपको मंजूरी देते हैं। फिर आपको इंतज़ार करना पड़ता है कि कब आपका मतलूबा या आपकी ख्वाहिश के मुताबिक बच्चा दस्तयाब हो तो आपको मिले। तो इस सारे अमल में कम अज़ कम 1 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 4 साल तक लग जाते हैं। लेकिन इसमें एक फ़र्क ये है, जैसे मैं सिद्रा डार की रिपोर्ट सुन रही थी कि यहाँ पर जो सोशल सर्विसेज के इदारे हैं वो आप पर कभी छुप कर और कभी सामने आकर नज़र रखते हैं कि आप बच्चे के साथ कैसा सलूक रवा रख रहे हैं। सही। तो जैसे कि आपने सादिया की रिपोर्ट का जिक्र किया और आप अपना जो जिस प्रोसेस से गुजरे वो भी बता रही हैं, तो डिफरेंस क्या पाया आपने? पाकिस्तान में तो हमने देखा कि कोई कवानीन है नहीं, लेकिन क्या डिफरेंस है, क्या सेंस ऑफ सिक्योरिटी आप समझती हैं बच्चे को मिलती है अगर आप अमेरिका में अडॉप्शन के लिए जा रहे हैं? एक पूरा अमल है, कानून उसमें, उसका पूरा एक कानून है और फिर वकील जो है वो हर तरह से यकीनी बनाता है कि बच्चा सिक्योर हो, उसके राइट्स सिक्योर हों। सोशल सर्विसेज के इदारे जब तक कि वो 18 साल का नहीं हो जाता वो आपको चेक रखते हैं। आपको पता ही नहीं होता कि किस तरह से वो आप पे नज़र रख रहे हैं। तो बच्चा किसी भी वक्त वो वापस ले सकते हैं अगर वो देखें कि कहीं पर भी कोई ख़राबी है। तो क्रिमिनल रिकॉर्ड आपका चेक किया जाता है और आपकी आमदनी, ये और कोई क्राइटेरिया है? आपकी जो एज है वो 21 साल से ज़्यादा हो। अगर आप शादीशुदा हैं तो कोई एक जो है उसमें से, यहाँ पर होते हुए तो खैर सिटीज़न होना ज़रूरी नहीं लेकिन लीगल स्टेटस होना ज़रूरी है। लेकिन मैं आपको बता दूँ इरम के अमेरिका की मुख्तलिफ रियासतों में कानून जो है वो थोड़ी बहुत तब्दीली है उसमें। तो कहीं पर ये क्राइटेरिया 21 साल है, कहीं 25 साल है, तो हर जगह मुख्तलिफ है। सादिया, बहुत शुक्रिया हमारा साथ देने का। आप बता रही थी अडॉप्शन के बारे में और अमेरिका में उसके क्या कवानीन मौजूद हैं। थैंक यू। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने बरी फौज के सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा की मुद्दत मुलाजमत में 6 माह की तौसीह की मंजूरी दे दी है। तफसील के लिए आइए urduvoa.com पर। आपकी क्या राय है हमसे शेयर कीजिए facebook.com/VOA उर्दू के पेज पर। ट्विटर पर हमारा हैंडल है @urduvoa। इस वक्त मशरिक़ वस्ता के कई हिस्सों में लड़ाई जारी है।
پیر کے روز بیروت میں اس وقت جھڑپیں شروع ہوئی جب حزب اللہ کے حامیوں نے حکومت مخالف احتجاج کرنے والوں پر دھاوا بولا. ادھر عراق میں عہدیداروں نے منگل کے روز بغداد میں سیکیورٹی فورسز کے ہاتھوں ایک حکومت مخالف احتجاجی کی ہلاکت اور 21 دیگر افراد کے زخمی ہونے کی تصدیق کی ہے. تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ حالیہ تاریخ میں اس نوعیت کے وسیع پیمانے پر ہونے والے مظاہروں کی مثال نہیں ملتی جو طویل عرصے سے شدت کے ساتھ جاری ہیں. تفصیل اس رپورٹ میں. دنیا بھر میں بڑے پیمانے پر کئی مہینوں سے احتجاجی مظاہرے جاری ہیں. اس میں مشرق وسطی بھی شامل ہے. لبنان میں عام طور پر مظاہرین زیادہ تر پرامن رہے ہیں، تاہم مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ اس غیر مستحکم ملک میں تصادم کے ایسے اکا دکا واقعات بڑے تنازع کی شکل اختیار کر سکتے ہیں. عراق میں بھی 300 سے زیادہ افراد ہلاک جبکہ ہزاروں کی تعداد میں زخمی ہو چکے ہیں. اس سال فروری کے بعد سے الجیریا میں ہفتے وار مظاہرے ہو رہے ہیں اور کئی سرگرم کارکنوں کو حراست میں لیا جا چکا ہے. تاہم ان میں سے کسی بھی ملک میں ابھی تک وہ تبدیلیاں نہیں کی گئیں جن کا مظاہرین مطالبہ کر رہے ہیں. ان مظاہرین کی شکایت ایک ہی نوعیت کی ہے، یعنی بدعنوانی، بے روزگاری اور حکومت کی ناقص کارکردگی. وہ یہ تبدیلی چاہتے ہیں اور جب تک یہ تبدیلی نہیں کی جاتی وہ پیچھے نہیں ہٹیں گے. تری اثنا لبنان اور عراق میں معاشی صورتحال خراب ہوتی جا رہی ہے اور تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ بڑے پیمانے پر جاری ان تحریکوں کے دیر پا اثرات کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا. تاہم اس کے قلیل مدتی اثرات اس وقت واضح ہیں. اعتماد کی بحالی کے لیے آج جس چیز کی ضرورت ہے وہ ہے ایک نئی حکومت کی تشکیل. ایسی حکومت جس میں موجود ماہرین اور لوگوں کی ساکھ بہتر ہو یا قابل اعتماد ہو. مظاہرین کا کہنا ہے کہ مایوسی، نا امیدی اور غصہ ان مظاہروں کو تحریک دے رہے ہیں. بڑھتے ہوئے تشدد کے نتیجے میں مظاہرین کی ہمتیں ٹوٹنے کی بجائے مزید تقویت پکڑ رہی ہیں. ہیدر مرڈوک کے ساتھ ندیم یعقوب، وائس آف امریکہ. تازہ ترین خبریں، اہم واقعات، آڈیو ویڈیو رپورٹس اور تجزیے دیکھنے، سننے اور پڑھنے کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے VOA اردو کی نئی ایپ. خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں. امریکہ میں ہر سال نومبر کی چوتھی جمعرات کو تھینکس گیونگ منایا جاتا ہے. یہ ایک ثقافتی تہوار ہے جس کی ابتدا 16ویں صدی میں اس وقت ہوئی جب یورپی ممالک کے لوگ امریکہ میں داخل ہوئے اور امریکہ کے حقیقی باشندوں یعنی نیٹو امریکنز کو دعوت پر بلایا. تاہم بعض روایات کے مطابق تھینکس گیونگ کی ابتدا فصلوں کی کٹائی کے موقع پر منائی جانے والی خوشیوں سے جا ملتی ہے. ویسے تو تھینکس گیونگ امریکہ میں اپنے خاندان کے ساتھ وقت گزارنے اور ان تمام چیزوں پر شکر ادا کرنے کا نام ہے جو انہیں میسر ہیں، لیکن اس موقع پر غریبوں کو بھی فراموش نہیں کیا جاتا. اور امریکہ میں قائم بعض تنظیمیں اس موقع پر دنیا بھر سے آنے والے نئے پناہ گزینوں کے لیے دعوتوں کا اہتمام کرتی ہیں. شہناز نفیس ہمیں تھینکس گیونگ کی ایک ایسی ہی تقریب میں لے جا رہی ہیں جس کا انعقاد ایتھوپین کمیونٹی ڈیولپمنٹ کونسل نے کیا ہے. تھینکس گیونگ کا یہ تہوار اس آئرش ڈانس کی لائیو پرفارمنس ہی کی مانند امریکہ کو اپنا گھر بنانے والے ان نئے پناہ گزینوں کے لیے ایک نیا تجربہ ہے. ایتھوپین کمیونٹی ڈیولپمنٹ کونسل اور مقامی کمیونٹی کی جانب سے منعقد کی جانے والے اس تقریب میں مدعو ان تقریباً 300 پناہ گزینوں میں عراق، شام، افغانستان اور پاکستان سمیت 12 ممالک کے پناہ گزین شامل تھے. مجھے امریکہ آئے ہوئے تقریباً 7 مہینے ہوئے ہیں. مجھے امریکہ اچھا لگا ہے. آج ہمیں تھینکس گیونگ کی اس پارٹی میں بہت مزہ آ رہا ہے. مجھے تھینکس گیونگ کا کھانا پسند آیا ہے. میں امریکیوں کا شکر گزار ہوں. 8 سے 4 برس پہلے امریکہ میں پناہ لینے والے نائجیریا کے بابو ادو کے لیے یہ تقریب خاص طور پر اہمیت کی حامل ہے. میرا پس منظر پناہ گزینوں کا ہے. میں جب ارد گرد یہ مختلف چہرے اور کلچر دیکھتا ہوں تو میں بہت جذباتی محسوس کرتا ہوں. یہ مجھے 4 سال پہلے کا وقت یاد دلاتا ہے، وہ وقت جب خود بابو کو اس نئے ملک میں ایک نئی زندگی شروع کرنے کے چیلنج کا سامنا تھا. یہ نئی شروعات کے لیے خدا کا شکر ادا کرنا ہے. اس ملک میں زندگی گزارنے کے لیے موقع فراہم کرنے کا شکریہ. ایتھوپین کمیونٹی ڈیولپمنٹ کونسل گزشتہ 15 سالوں سے پناہ گزینوں کے لیے تھینکس گیونگ کی تقریب منعقد کر رہی ہے جس میں امریکہ آ کر آباد ہونے والے پرانے پناہ گزینوں اور کمیونٹی کے افراد کو بھی مدعو کیا جاتا ہے. اس تقریب کا مقصد نئے پناہ گزینوں کو کمیونٹی کے دیگر افراد اور امریکی نظام سے متعارف کرانا ہے. یہ ایک دوسرے سے سیکھنے اور جاننے کا بہترین موقع ہے.
तंजीम से मुंसलिक रजाकार नए आने वाले रिफ्यूजीज को मदद देने में मसरूफ थे। ऐसे में जब अमेरिका में दाखिल होने वाले पनाहगुज़ीनों की तादाद में हर साल कमी की जा रही है, यहाँ पर मौजूद पनाहगुज़ीन पुरुमीद हैं कि उनके आबाई वतन में मौजूद बाकी रिश्तेदार भी एक दिन उन्हें अमेरिका में ज्वाइन करेंगे। जब तक जिंदगी है उम्मीद बाकी रहती है, एक दिन मेरा खानदान मेरे साथ होगा। शहनाज नफीस, वॉइस ऑफ अमेरिका, आर्लिंगटन। अमरीकी रियासत इंडियाना में एक यूनिवर्सिटी ऐसी भी है जहां हर साल थैंक्स गिविंग को बहुत अहमियत दी जाती है। इसी सिलसिले में गुज़श्ता 10 सालों से ये यूनिवर्सिटी इस अमरीकी त्यौहार के लिए बैनुल अक़वामी तलबा और इंडियाना के रहायशों को मिलकर ये त्यौहार मनाने का मौका फराहम कर रही है। मज़ीद इस रिपोर्ट में। पिछले 10 बरसों से इंडियाना यूनिवर्सिटी के साउथ बैंड कैंपस पर इंटरनेशनल तलबा थैंक्स गिविंग के रिवायती त्यौहार का इनकाद करते आए हैं। मैंने हमेशा यही पढ़ा है और लोग भी यही कहते हैं कि थैंक्स गिविंग पर हमेशा टर्की का गोश्त खाया जाता है। मुझे कभी पता नहीं चला कि ऐसा क्यों है, लेकिन यहाँ मैंने इसके बारे में मजीद कुछ सीखा है और इस फंक्शन की तैयारी के दौरान भी मैंने कुछ तहकीक की है, इसलिए अब मुझे पता है कि इस त्यौहार का मतलब क्या है। मुझे मीठा पसंद है और मुझे यहाँ कद्दू का मीठा नजर आ रहा है और मैं इसे जरूर खाना पसंद करूंगी। इस त्यौहार का बड़ा मकसद बैनुल-अक़वामी तलबा को इस अमरीकी रवायत से मुतारफ कराना है। मेरा ख्याल है इसका और यहाँ जो फूड फेस्टिवल हम करते हैं इसका एक अहम पहलू ये है कि कम्युनिटी को पता चलता है कि इस इलाके में बैनुल-अक़वामी अफराद भी रह रहे हैं, क्योंकि बहुत कम लोग इस बात से वाकिफ हैं। इस साल इस इवेंट का थीम या मरकजी ख्याल ऐसा है जो यहाँ आने वाले बेशतर अफराद की सोच से मेल खाता है। ये सब बहुत अच्छा है। मुझे लगा जैसे मैं अपनी फैमिली के गिर्द मौजूद हूँ। बहुत जबरदस्त बात है और खाना तो बहुत ही जबरदस्त और मजेदार है। अमरीकी रियासत इंडियाना यूं तो बैनुल अक़वामी तलबा के दरमियान इतनी मकबूल नहीं है, लेकिन ऐसे अफराद जो यहाँ पढ़ने आए हैं कहते हैं कि वो यहाँ आकर खुश हैं। मैं अमेरिका आने वाले हर शख्स से यही कहूँगा कि वो किसी छोटे शहर या छोटी रियासत को तरजीह दे, लेकिन इस जगह ने मुझे स्कूल पर तवज्जो मरकूज रखने और ज़्यादा मिलनसार शख्स बनने में मदद दी है। फिर चाहे इन अफराद को यहाँ का खाना पसंद आए या ना आए, इस अमरीकी रिवायत में शरीक होने वाले कुर्बो जवार से आए तमाम अफराद को महसूस होता है कि ये घर जैसी ही एक जगह है। ईशा सराय के साथ नुक़बत मलिक, वॉइस ऑफ अमेरिका। बहुत से अमरीकियों के लिए थैंक्स गिविंग की बहुत अहमियत है और इस अशाइये में टर्की का होना लाजमी समझा जाता है। अमूमन इस छुट्टी वाले दिन लोग अपने ख़ानदान और दोस्तों के साथ वक्त गुजारते हैं, लेकिन कुछ अमरीकियों के लिए ये त्यौहार मुतनाज़ा भी है, जिसकी वजह थैंक्स गिविंग की इब्तदाई तारीख़ के बारे में गलत बयानी बताई जाती है। जो लोग इस दिन के मनाने पर नाखुश हैं वो कहते हैं कि अमरीकी तारीख़ के असल हक़ाइक़ को भुला दिया गया है और हर साल थैंक्स गिविंग के बारे में गलत हवालों को फ़रोग़ दिया जाता है। इस त्यौहार के बारे में अमूमन कहा जाता है कि ये 1621 में यूरोपीय नौबादकारों और अमेरिका के एक आबाई कबीले के दरमियान फसल की कटाई के मौके पर एक दावत की याद में मनाया जाता है। ज़्यादातर अमरीकी समझते हैं कि वाक़या रियासत मैसाचुसेट्स में पेश आया, जबकि चंद का ख्याल है कि ये त्यौहार दरअसल इससे भी चंद साल पहले रियासत वर्जीनिया में 1619 में शुरू हुआ था। तो अमरीकियों में तारीख़ और मकाम के हवाले से मुख्तलिफ आरा पाई जाती है। अमरीकी सदर अब्राहम लिंकन ने 1863 में पहली बार थैंक्स गिविंग को वफाकी सतह पर मनाने के लिए छुट्टी का ऐलान किया था। एक अंदाजे के मुताबिक दुनिया भर में 1 अरब से ज़्यादा लोग अंग्रेज़ी बोलते हैं और तकरीबन 2 अरब ये ज़बान बोलना सीख रहे हैं, लेकिन अंग्रेज़ी की ग्रामर आसान नहीं है उनके लिए भी जिनकी ये मादरी ज़बान है। आइए मिलते हैं एक माहिर लसानियात से जो न्यूयॉर्क के ज़ेर ज़मीन ट्रेन सिस्टम में ग्रामर की मोबाइल ट्यूशन दे रही हैं। एक फोल्ड हो जाने वाली मेज, किताबें, मुस्कुराहट और अंग्रेजी ग्रामर की गहरी मालूमात। एलन जोवन के पास हर चीज जिसकी जरूरत पड़ सकती है मौजूद है और ग्रामर का शौक रखने वालों के लिए अब ये एक स्टॉप बन गया है। जोवन को अंग्रेजी ग्रामर से मोहब्बत है और वो इसे फरोग दे रही हैं। वो और उनके शौहर एक बिजनेस कम्युनिकेशन डेवलपमेंट कंपनी के मालिक हैं। रिवायती ऑनलाइन क्लासें उनकी जिंदगी हैं, लेकिन उन्होंने चीजों को दिलचस्प बनाने का फैसला किया और न्यूयॉर्क शहर के सबवे ट्रेन सिस्टम और गलियों में कैंप कायम किया। मैंने साइन लगाया और 30 सेकंड में ही आगे बढ़कर किसी ने सवाल पूछा कि मेरे ख्याल में डोनाल्ड ट्रंप को कितने अल्फाज आते हैं। हालांकि ये ग्रामर से ज्यादा सियासी सवाल है, लेकिन जोवन का मानना है कि बेहतर ग्रामर जानने से लोग एक दूसरे को आलमी सतह पर बेहतर जान पाएंगे।
तलबा, पेंशन पर गुजारा करने वाले इंजीनियर्स, खाकरोब, अदाकार या साथी माहिर लिसानियात, ग्रामर टेबल उन सबको मुतवज्जा करती है जो अंग्रेजी जबान को पुरस्कार पाते हैं। जैसा कि अगर मैं कहूँ कि उसने सलाद, स्पेगेटी और सोडा ऑर्डर किया है, तो इससे पहले अंग्रेजी में आप कॉमा लगा सकते हैं और इसे ऑक्सफोर्ड कॉमा या कभी कभार सीरियल कॉमा भी कहते हैं। न्यूयॉर्क सबवे के मुसाफिरों ने जल्द ही नई खातून को अपना लिया। गाने बजाने वाले असातिज़ा और पुलिस एहलकार अक्सर रुक कर इनसे बातें करते हैं। ऐसी चीजें जो जबान और कल्चर से ताल्लुक रखती हैं तो ये दूसरी चीजों के मुकाबले में ताज़ा झोंका है। तमाम सवालात अंग्रेजी में या अंग्रेजी से मुताल्लिक नहीं। जोवन हिस्पानवी, इतालवी, पुर्तगाली, जर्मन, फ्रेंच, चीनी, कोरियन और जापानी रवानी से बोलती हैं और कुछ दूसरी नई जबानें भी सीख रही हैं। नीना विश्नैवा के साथ सबा शाह खान, वॉइस ऑफ अमेरिका। पेरिस के शॉन्ज़ेलीज़े का दुनिया के महंगे तरीन इलाकों में शुमार होता है। फोर्ब्स मैगजीन के मुताबिक 1 मीटर ज़मीन खरीदने के लिए आपको तकरीबन 30 लाख रुपए खर्च करना पड़ते हैं। वहाँ दुनिया के महंगे तरीन ब्रांड्स के स्टोर्स में एक एक दुकान की मालियत कई मिलियन यूरोस है। असदुल्ला खालिद की रिपोर्ट। सड़क के एक तरफ आर्क डी ट्रायम्फ है। 50 मीटर ऊंची इस मेहराब से पूरे पेरिस को देखा जा सकता है। 1836 में मुकम्मल होने वाली इस आर्क के नीचे इनकलाब फ्रांस के सिपाही दफन हैं। पेरिस का जिक्र शांज़ेलीज़े स्ट्रीट के बगैर मुकम्मल नहीं है और ये वो स्ट्रीट है जिसमें अरबों डॉलर्स का कारोबार होता है। दिन हो या रात यहाँ हमें उसी तरह से रौनक नजर आती है। दुनिया के बड़े बड़े ब्रांड्स हमें यहाँ पे पोस्ट होते हुए दिखाई देते हैं। सड़क के दूसरे सिरे पर बुतों और फवारों से मुज़य्यन प्लेस दी कॉनकॉर्ड, जहाँ फ्रांसीसी इंकलाब के बाद शहनशाह लुई अगस्टे को फांसी दी गई। नेपोलियन यहाँ पे जब ठहरा हुआ था तो यहाँ पे जो शॉन्ज़ेलीज़े के पिलर्स में काफ़ी सारे पैट्रियोटिक वर्ड्स लिखा है। तो इन फ्रेंच लोगों के लिए ये बहुत बड़े एक प्लेस है, कम मतलब इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिक्स, हिस्ट्री। फ्रांस में अपने मुल्कों से काम के लिए आए नौजवानों को जब उनके मुल्कों से कोई मिलने आता है तो घुमाने के लिए ये पेरिस की बेहतरीन जगह समझी जाती है। सौरभ मुखर्जी के वालिदैन आजकल उनके पास रहने आए हुए हैं। मेरा पेरेंट्स वो घूमने के लिए आए हैं इंडिया से, तो मैं इंडिया का रहने वाला हूँ, तो उनको मैं साइट सीइंग करा रहा हूँ और पेरिस में। दे आर एक्चुअली एंजॉयिंग पेरिस। हमारा लड़का तो यहाँ ही रहता है। इंडिया से हम 3 महीना हो गया। अच्छा। फिर जाने का भी टाइम हो गया हमारा। शांज़ेलीज़े को पेरिस का नया मुआशी सेंटर भी कहा जाता है। यहाँ आपको सिनेमा घर से लेकर दुनिया के तकरीबन तमाम ही महंगे ब्रांड्स नजर आएंगे। Personally, I didn't do my shopping here because it's too expensive. ज़ाती तौर पर मैं यहाँ शॉपिंग नहीं करती क्योंकि ये इंतहाई महंगी जगह है, लेकिन मुझे अपने खानदान के साथ यहाँ आना और सैर करना अच्छा लगता है। अभी तो देखने के लिए आए हैं ऑब्वियसली क्लोथ्स और जो परफ्यूम्स है और जो एक्सेसरीज है। अभी हम लोग जा रहे हैं शॉपिंग स्ट्रीट के सामने। हम यहाँ से एक परफ्यूम खरीदना चाहेंगे और जो भी अच्छा लगेगा ऑफ कोर्स खरीदेंगे ही। फनपारों की नुमाइश हो या किसी फिल्म का प्रीमियर या किसी भी बड़े ब्रांड की अशिया की खरीदारी, इन सब की एक ही जगह पर मौजूदगी इस सड़क को मुनफरिद बनाती है। पेरिस में शॉन्ज़ेलीज़े की सैर के बगैर आपका फ्रांस का दौरा मुकम्मल नहीं हो सकता। असदुल्ला खालिद, वॉइस ऑफ अमेरिका, पेरिस, फ्रांस। ये था आज का व्यू 360। दोबारा देखने के लिए आइए हमारे फेसबुक पेज पर, पता है facebook.com/VOA उर्दू। इसके अलावा ट्विटर पर हमारा हैंडल है @UrduVOA। इंस्टाग्राम पर आप उर्दू VOA को फॉलो कर सकते हैं बहुत सी दिलचस्प वीडियोस और तस्वीर के लिए। हम अपने इंस्टाग्राम पर आपकी खींची हुई बेहतरीन तस्वीर भी पोस्ट करते हैं, तो उठाइए अपना फ़ोन, लीजिए पाकिस्तान के नज़ारों की अच्छी सी तस्वीर और हमसे शेयर कीजिए। इसी के साथ इरम अब्बासी को दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी कल। टेक केयर।